Good afternoon, friends. Welcome to our Predictive Homeopathy book daily book reading workshop. Today, we will read the first part of Predictive Homeopathy, the book Theory of Suppression. And in this, chapter number 3, Direction of Cure. तो अभी तक हमने 2 चैप्टर्स देखे. फर्स्ट चैप्टर In first chapter, we have seen theory of suppression and progression of disease. What is homeopathic result? And in second chapter, reason for suppressions. Sir has given different types of reason, many reasons in this chapter, and 7 cardinal principles. Now in chapter 3, what is the direction of cure? So we know that diseases do not disappear into thin air. Yes. कोई भी डिजीज, कोई भी सिम्टम्स अगर डिसअपियर होता है तो उसे कहीं ना कहीं से निकलना ही चाहिए. वो ऐसे ही कहीं गायब नहीं हो जाता. डिसअपियर हो गया, कोई भी सिम्टम्स चले गया, पेशेंट जब बोलता है कि मुझे ये तकलीफ थी, वो अभी कुछ भी नहीं रही, पूरी चली गई, कुछ नहीं है, अभी एक भी सिम्टम बाकी नहीं, तो गया तो कहाँ गया. उसे कहीं ना कहीं से निकलना ही चाहिए. एक तो वो अपर लेयर से निकलेगा, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से निकलेगा, या फिर लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से और लेस इंपॉर्टेंट सिस्टम में से बाहर आएगा. तो उसे कहीं ना कहीं से आना ही चाहिए, क्योंकि द सिम्टम, द डिजीज, इट इज एन एनर्जी. इट इज बैड और टॉक्सिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी. सो वो कहीं ना कहीं से निकल के ही आएगी, क्योंकि एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगी ओनली. तो इसीलिए अगर वो मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन में जाते हैं, दैट इज इट इज सप्रेशन, और अगर वो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से आता है सिम्टम्स, तो इट इज द राइट डायरेक्शन ऑफ क्योर. So we know that disease just do not disappear into thin air, nor do they appear from out of blue. Everything sorry, everything in this world, including diseases, have a precursor and a follower. Yes. Symptoms disappear from one system only to reappear in a different system, tissues or organs. This is called transfer of disease. Transfer of disease can be of 2 types. First, when symptoms disappear from one organ or system only to reappear in a system or organs of more important. For example, symptom disappear from second layer, endoderm, and afterward it appears in the third layer, connective tissue. It is progression of disease, ascending of disease, ascending of layer of suppression chart. It is progression of disease. And
we will say that it is a pure suppression. This may occur in natural course or with improper treatment. Yes. What is natural course? Natural course, that means automatically भी हो सकता है या फिर any type of medicament, like medicament भी हो सकता है या फिर जो हम बहुत बार सुनते हैं कि पेशेंट बहुत बार कहते हैं कि हमने घर की ट्रीटमेंट लिया, बाहर की ट्रीटमेंट लिया, घर में कुछ यूज किया, जैसे कि ओल्ड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स, कुछ खा लिया, कुछ लगा लिया। बहुत जगह ऐसा होता है कि कुछ मंत्र बोले हुआ पानी दे देते, सोल वाटर दे देते, तो इससे भी सप्रेशन होता है, क्योंकि उससे एनर्जी ट्रांसफर होती है और वो एनर्जी उस बॉडी की एनर्जी को सप्रेस कर देती है। Body's energy gets extracted, stimulated, or it may become weaker. When the symptoms disappear from one organ to other system to appear in organs of lesser importance, it is regression of disease. That is, from third layer, symptoms disappear and afterward it appears in the second layer. It is regression of disease and it is the proceeding towards cure. That is the right direction of cure. Now, which are less important organs and which are more important organs? This has been the biggest question looming large in front of all homeopaths. Lack of this knowledge makes the homeopathic prescriber lurch in the dark. Yes. Many a good follow-up after a prescription which is proceeding towards a cure is nipped in the bud due to inadequate knowledge of direction of cure. Yes. कभी कभी हम right direction से जा रहे होते हैं, पेशेंट बोलता है कि मुझे पहले ये था, अभी ये आ रहा है, तो राइट डायरेक्शन होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ chronological order of the organs, system, tissue layer, हमें समझ में नहीं आता है कि ये मोर इम्पोर्टेंट की तरफ जा रहा है या फिर लेस इम्पोर्टेंट की तरफ, और वहां पे थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस ऑफ द मेडिसिन कॉज द सपरेशन. So Dr. Constantine Hering was the first homeopath to show us the light in this direction. His direction guiding law of cure should be considered as one of the greatest discovery in homeopathy, second only to discovery of the science itself by Dr. Samuel Hahnemann. First discovery homeopathy की और second discovery डॉक्टर हेरिंग की हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर. ये उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि हम होम्योपैथी साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि होम्योपैथी साइंस पढ़े और डायरेक्शन ऑफ क्योर ही पता नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा कि हम सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि क्योर की तरफ जा रहे हैं. इसलिए उसे सिमिलर इंपॉर्टेंस सर ने दिया है. Both these discoveries perfectly complement each other. It is only when a cure is seen following Hering's law one can really vindicate Dr. Hahnemann's universal principle of similia similibus cadenti. The direction of cure has been laid down by Dr. Herings in his law of cure with the following corollaries. So cure takes place with symptoms disappearing from above downward.
inside out direction, from center to periphery, from more important organs to less important organs or system, in the reverse order of the appearance of the symptoms. These 5 corollaries, some of these directions seem to confuse the homeopaths since they apparently contradict each other. Yes. तो कैसे अबो डाउनवर्ड देखना चाहिए, कैसे इनसाइड आउट होना चाहिए, सेंटर टू पेरीफेरी कैसे होता है, मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कैसे होता है, इन द रिवर्स ऑर्डर कैसे होता है। बहुत से डिजीजेस में ये पता होता है, लेकिन बहुत से डिजीजेस में समझ में नहीं आता है कि विच पार्ट ऑफ द ऑर्गन और सिस्टम इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज द लेस इंपॉर्टेंट। बहुत से डॉक्टर्स सोर थ्रोट के बाद अगर कफ होता है तो इट इज गुड साइन बोलते हैं, क्योंकि वो अबो डाउनवर्ड हो रहा, लेकिन वहां पर फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट पार्ट थ्रोट टू मोर इंपॉर्टेंट पार्ट लंग्स की तरफ जा रहा है, इट इज बैड। तो इनसाइड आउट कैसे होना चाहिए, तो कफ जाके जब स्नीजिंग आता है तो इट इज इनसाइड आउट, दो इट इज बिलो अपवर्ड बट इट इज इनसाइड आउट। सो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं हेरिंग लॉ में, वो समझ में आने चाहिए। सो सम ऑफ दीज direction seems to confuse the homeopath since they appear contradict each other. Yes. तो सर ने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए, केसेस दिए जो समझने के लिए बहुत ही इजी है और फॉलो करने के लिए भी अगर ये हम ध्यान में रखते हैं हमेशा तो कहीं छोटी छोटी गलतियां नहीं होगी। So a case of asthma being better with the catarrh in the chest reducing followed by dry cough and further by sneezing should be taken as direction down upwards, wrong direction from inside out direction. स्नीजिंग गया और कफ आया तो इट इज रॉन्ग, बट कफ जाने के बाद अगर स्नीजिंग आता है तो इट इज गुड साइन, दो इट इज below upward but it is inside out. A case of hyperacidity and beginning in the stomach, disappearing and tingling, numbness in hand. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेंटर टू पेरीफेरी हो रहा है, तो इट इज गुड और बैड? So it is bad because stomach it is a second layer, fourth layer organ, and tingling it is sixth layer. So it is from more important organs to less important organs to more important organ हुआ, less important system to more important system हुआ, इसलिए it is suppression, sure short sign of suppression, progression of disease. क्योंकि ये सेंटर टू पेरीफेरी नहीं हुआ, इनसाइड आउट भी नहीं हुआ, it is from more important to less important to more important organ. Similarly, cough and recurrent bronchitis disappear only to give rise to leukoderma. Yes, bronchitis gaya और leukoderma है, again it is suppression because skin is the externalization of disease. That is, हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी जानने के बाद स्किन पे आना चाहिए, लेकिन स्किन पे अगर इस फॉर्म में आता है व्हाइट स्पॉट तो इट इज बैड। स्किन पे आना चाहिए ब्रोंकाइटिस जाने के बाद, लेकिन सिंपल रेड इरप्शंस, देन इट इज गुड, बट इट इज ट्रांसफर फ्रॉम सेकंड लेयर टू फिफ्थ लेयर, ल्यूकोडर्मा, destruction of melanin. Yes, so these and many other questions arise in our minds and confuse us to the extent of neglecting the law of cure. Yes. मैंने बहुत बार देखा है कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो बहुत से डॉक्टर्स छोड़ देते हैं,
जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सॉल्व करने का, समझ के लेने का, अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं करते कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. So this non-abidance of the law, cure of lawlessness in homeopathic practice is the sole cause of homeopaths not being confident in their practice and not ready to accept risk in emergencies. Like myocardial infarction of heart, tuberculosis, etc., all on their own. Yes, बहुत से डॉक्टर्स है जो ऐसे केसेस देखते भी नहीं, सीधा रेफर कर देते. This has unfortunately given homeopathy a rank of auxiliary science. जब आप रेफर करते हैं तो ब्लेम आपको नहीं, होम्योपैथी को जाता है, क्योंकि होम्योपैथी से क्योर नहीं हो रहा है इसलिए रेफर कर रहे हैं. It is unfortunately used only when there is no immediate risk to life, along with other conventional therapy going on simultaneously. We ourselves belittle the scope of homeopathy due to our ignorance. Yes. This is due to ignorance or a lack of knowledge of human sciences. For example, proper anatomy, physiology, embryology, immunology, neuroendocrinology, human biochemistry, genetics, etc. अगर आपको सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रैक्टिस करनी है तो इन सब सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो आप सेपरेशन देख ही नहीं पाएंगे. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आपको हेल्दी कंडीशन क्या होती है एंड नॉन हेल्दी कंडीशन क्या होती है, डिजीज कंडीशन क्या होती है, पता ही नहीं चलेगा. नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है और डिस्टर्ब फंक्शनिंग एंड डिजीज क्या होती है. यस, सो दिस इग्नोरेंस हैज प्रॉम्प्टेड मेनी ऑफ अस पुट forth their theories of cure to suit their convenience, but these theories do not stand the test of time and science. Yes. So after 22 years of practical experience, which include allopathic practice, wrong homeopathic practice with mixing of drug, specifics, prescription based on all possible wrong principles in homeopathy, and above all, after an in-depth study of human sciences, for example, embryology, genetics, immunology, and physiology, etc., I have been able to set up a chart of progression of disease. Yes, which I have seen, experienced, and found true again and again in my practice. सर ने ये जो 7 layers theory of suppression जो चार्ट बनाया, ये ऐसे ही नहीं बनाया. सर ने पहले इन सब्जेक्ट्स का स्टडी किया, उसके बाद इसे अपने क्लिनिक में अप्लाई किया. अप्लाई करने के बाद जो एक्सपीरियंस सर को आया, एंड सर बिकम्स सरप्राइज्ड. Wow, this is a great science. वर्क डॉक्टर हेरिंग ने किया, सही में कितना वंडरफुल वर्क है. तब सर ने बुक लिखना स्टार्ट किया. So this chart indicates that all that is happening in the human body, whether cure or disease, are mathematical in progression or regression. Yes. जो भी होता है, it is
टोटली मैथमेटिकल, मतलब एक गया दूसरा आया। जैसे कि हम रेपर्टराइजेशन में सिम्टम्स ऐड करते हैं, मेंटल मेकअप, मेंटल सिम्टम्स प्लस जनरल सिम्टम्स प्लस पर्टिकुलर सिम्टम्स प्लस डिजीज सिम्टम्स plus miasm, then we will get the right medicine. So all these are all mathematical calculation. That's why Dr. Vijay Kar says, always sir says that homeopathy is a mathematical, because mathematics it is universal. कहीं पे भी जाओ मैथमेटिक्स सेम रहेगा. दैट्स वाई आप होम्योपैथी को कहीं पे भी लेके जाओ वो सेम टाइप से वर्क करेगी, और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कहीं पे भी जाओ सेम ही होगा अकॉर्डिंग टू एनिमल. इसीलिए दिस साइंस इज अ मैथमेटिकल साइंस. सो देयर इज सर्टेन ऑर्डर इन डिसऑर्डर. इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन साइंसेज इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस. Homeopath, as is wrongly believed, is not just a symptom reliever. At least he should not be one. Homeopath treats man in disease and not the disease in man. If he treats man as a whole, it is imperative that he understand the internal mechanism of man. He should know what a man is made up of. He should know how his system of the body functions and how he falls ill. If he knows all this, he shall know how and what to correct in him. Yes. तो हमें अगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पता है तो ही हमें पता चलेगा कि डिजीज कैसे होता है, बॉडी का फंक्शन डिसफंक्शन में कन्वर्ट कैसे होता है, और उस फंक्शन को हमें करेक्ट कैसे करना है, उसे रिस्टोर कैसे करना है. सो हाउ टू क्योर हिम. Importance of physiology. One has to realize that man is made up of units of life called cell. The cells make up tissue, tissues make up organs, and organs make up the system, and system helps man to live or survive. All the cells and tissues are in correction with each other. There are various food elements like proteins, fats, carbohydrates, and various ions like ferrum, magnesium, potassium, sodium, which pass from one cell to another. They pass from tissue to tissue and get disturbed all over the body. Such food elements and necessary ions are supplied all over the body to build and maintain the tissue. The supply all over body is essentially by various means. For example, cytoplasmic streaming, osmotic gradient, concentration gradient, and the most important, electrical potential gradient. ये जो फिजियोलॉजिकल पार्ट सर ने यहाँ दिया है, ये सब फंक्शनिंग किस तरह से होता है तो हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा ही है. किस तरह से मेकअप ऑफ बॉडी है, मेकअप ऑफ मैन है. It has been scientifically proved by scientists like Ulpart and Weddington that there exist for different paths of supply of food called nutritive gradients or animal growth axis. Or this animal growth axis develops the body, which make these essential constitutions flow. All these gradients are passive gradients. Why passive? Because
no energy is required for the transfer of these elements, these nutritive gradients. It flows according to gravitational force. That's why it doesn't require energy. And because of this, it is a passive gradient. They flow from above downward, from more important organs to less important organs, from center to peri, from inside out. And that's why our Hering's law works like this. How do we know that the animal growth axis flows in a particular direction? Yes. Sorry. So, importance of embryology, this is exactly where knowledge of the embryology helps. Embryologically, we know that a fetus grows step by step according to this animal growth axis. Center to periphery nutrient gradients flow होते हैं और उस तरह से growth and development start हो जाती है embryo की. So step by step in a particular manner and direction. The direction of growth is along the animal growth axis. If construction of fetus takes place in this direction, this can be called as life-giving nutritive gradients, along which flow the element necessary for growth and maintenance. Yes. So, इस तरह से बॉडी डेवलप होती है, ऑर्गन, सिस्टम एंड होल बॉडी. जिस तरह से न्यूट्रिएंट ग्रेडियंट्स फ्लो होते हैं बॉडी में सेंटर टू पेरिफेरी, फ्रॉम गो डाउनवर्ड, फ्रॉम लेस मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, और टोटली इसके टोटली अगेंस्ट डिजीज फोर्स, दैट इज टॉक्सिक मटेरियल फ्लो होता है from below upward, from periphery to center, from more important, less important organs to more important organs. So on the other hand, toxins or toxic proteins which do not have an already existing passive gradient are transformed from cell to cell or tissue to tissue through active transport using of energy. और जो nutritive gradient flow हो रहा है through the animal growth axis, it doesn't require energy. It flows according to gravitational force. And जो toxic proteins or toxins है जो flow हो रहे हैं from less important to more important, from periphery to center, from outside to inside. This is called the active transport. It requires energy and it takes the energy from ATP. That's why after disease we feel the dullness and weakness. This is destructive in character and being opposite of the nutritive gradients can be called as disease excess. So active transport, it is disease excess. Passive transport, it is nutritive gradient excess, growth excess. The disease excess proceeds toward the deterioration of human life and finally death. जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, then it leads to death. The cure axis, that is the nutritive gradient, has to be exactly opposite, leading to appreciation of living values and healthy life, but not immortality. Yes. This cure axis correspond to nutritive gradients. These nutritive gradients also correspond to the four polarities of Hering's law of cure. This negative gradient, when strong and when strengthened,
can wash down the toxins from the tissue. Yes. तो जब कोई भी पर्सन डिजीज्ड हो जाता है, उसके अंदर डिजीज स्टार्ट हो जाता है, तो वहां का न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट्स डिस्टर्ब हो जाता है, और एंड आफ्टर आवर मेडिसिन इट गेट्स स्टिम्युलेटेड, एंड एक बार न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट्स फ्लो स्टिम्युलेटेड हुआ तो उस ऑर्गन तक न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट्स जाएंगे, न्यूट्रिशन जाएगा, एंड धीरे धीरे उसका डिजीज क्योर होगा, उसका डलनेस वीकनेस जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन पहुंचने के बाद वहां पे एनर्जी आएगी. And this is called the Hari's law. These nutritive gradients, when strong and when strengthened, can wash down the toxins from the tissue. ये जैसे वहां पे जाता है तो वहां से टॉक्सिन्स बाहर निकलना, एक्सटोराइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स होना शुरू हो जाता है. So these nutritive gradients can therefore be called as gradient of elimination. Since it helps in eliminating toxins from the deeper tissues or parenchymas of organs which are not drained by our other two excretory system, that is urinary and gastrointestinal system. Yes. तो जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में है वो यूरिनरी सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम्स में जाएंगे और वहां से वॉश आउट होंगे, टोटली एक्सक्रीशन वहां से होगा. We thus conclude that the homeopathic remedy acts on the body to enhance the nutritive gradients by adjusting the electrical potential, which should be higher in the more important tissue like brain. Yes, brain का आप देखो इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हाई होता है. आपने देखा होगा अगर स्किन पे कहीं कट होता है तो स्लो ब्लीडिंग होगा, लेकिन वही अगर हेड में कुछ इंजरी होती है, कट इंजरी होती है, तो वहां से ऐसे स्ट्रांगली ब्लीडिंग होता है, स्ट्रीम में ब्लीडिंग होता है, फास्ट ब्लीडिंग होता है, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बहुत हाई होता है और स्किन का लो होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि why suppression occurs, why weakness and dullness after the medicine or after the regression of disease, suppression of disease occurs. That is the progression of disease. So electrical potential, which should be higher in the more important tissues like brain, heart, lungs, etc., to the lowest outside on the skin. The lower the skin electrical potential, the better is the elimination. Anything which increases the electrical potential on the skin shall interfere with elimination or excretion process via the skin. Yes, बहुत important सर ने यहाँ बताया how the suppression occurs. जो भी मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वहां का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हाई होता है, और जो लेस इंपॉर्टेंट है लाइक स्किन, पेरीफेरी ऑर्गन्स, वहां का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लो होता है. दैट्स व्हाई टॉक्सिन्स, टॉक्सिक मटेरियल फ्लोज थ्रू दिस वे from more important to less important, from center to periphery, from inside to out and above downward, because of electrical potential. Any ointment or local application, be it sopramycin, calendula, graphitis, Vicks or sensor ointment, all these interfere with the electrical potential on the skin. Yes, the big reason given here why we not allow to apply these ointments after the treatment. Because जब भी ये ointment, cream, lotion
स्किन पे अप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली स्किन का वहां का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हाई हो जाएगा और जो टॉक्सिन्स बॉडी में से इलिमिनेट हो रहे थे, वहां से एक्सक्रीट हो रहे थे, वो वहां का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हाई होने की वजह से वो टॉक्सिन्स वापस रिवर्स हो जाएंगे जहां से वो आए थे, एंड दिस इज कॉल्ड सप्रेशन। क्योंकि वो जब टॉक्सिन्स एक्सक्रीट होने वाले थे, वो वापस उस ऑर्गन में जाके उस डिजीज को बढ़ा देंगे, वर्स कर देंगे। एंड जब ये ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम स्किन टू दैट ऑर्गन जहां से वो आए थे, इट रिक्वायर्स एनर्जी बिकॉज इट फ्लोज अगेंस्ट द फ्लो, against the gravitational flow. That's why it requires energy and this is called the suppression. इसीलिए हम बोलते हैं कि सप्रेशन में हमेशा वीकनेस आता है, डलनेस आता है, एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। और वही जब क्योर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द मेडिसिन, आफ्टर द फर्स्ट डोज ऑफ मेडिसिन, पेशेंट फील्स बेटर, स्टेमिना इंक्रीज, वीकनेस गोज। दिस इज द बेस्ट साइन दैट योर मेडिसिन इज राइट। तो हम पेशेंट को लोकल एप्लीकेशंस क्यों नहीं बोलते, उसका रीजन सर ने यहां एक्सप्लेन किया है। These are therefore contraindicated in homeopathy, even menthol products or the anesthetic ointments, which benumb the tissues either on the skin or mucous membrane of mouth, throat, stomach, do the same damage and interfere with action of homeopathic medicines. After establishing what could be happening when homeopathic remedies start a cure, we take the help of embryology again to see what path the nutritive gradients takes to establish the path of cure. This also means one should know what path disease takes in the organ and system in the mathematical progression of disease. Once we understand which organ are derived from what embryological tissue, यस सर ने बहुत ही डिटेल नॉलेज यहां दिया है। ये सब समझने के लिए, ये प्रोसेस समझने के लिए, ये सप्रेशन का क्योर का पाथ समझने के लिए हमें एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कौन सा टिश्यू लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा टिश्यू पहले बना है और कौन सा बाद में, इस पे भी डिपेंड होता है। जैसे कि स्टमक में अगर 3 टाइप के टिश्यूज है, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल एंड मेसोडर्मल, तो कौन सा टिश्यू से कौन से टिश्यू में डिजीज ट्रांसफर हो रहा है, इसका नॉलेज अगर हमें है तो ही हम समझ पाएंगे कि सप्रेशन हो रहा है कि क्योर हो रहा है। So once we understand which organ are derived from what embryological tissue, we shall clearly understand which organ is more important and what is less important. This chart can then be used productively like a compass to gauge the direction of cure, law of cure. Yes. ये जो 7 लेयर्स चार्ट सर ने दिया है, इट इज लाइक अ कंपास। ये हमेशा अगर पास में आता है तो हम रॉन्ग हो ही नहीं सकते। लेकिन ये चार्ट समझने के लिए, 7 लेयर्स ऑफ सप्रेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी की पढ़ाई। अगर एम्ब्रियोलॉजी पता नहीं तो ये चार्ट कभी समझ में नहीं आएगा, सप्रेशन कभी समझ में नहीं आएगा। यस, सो दिस इज द 3rd चैप्टर, लॉ ऑफ क्योर, डायरेक्शन ऑफ क्योर। यस, तो हेरिंग्स लॉ ने कितना, जब कुछ भी नहीं था, कोई
बॉडी का इतना नॉलेज नहीं था, सब कुछ डिसेक्शन करके पोस्टमार्टम करके उन्होंने ये सब चीजें सीखी है, क्योंकि उस वक्त ना कोई माइक्रोस्कोप था ना कुछ था, लेकिन फिर भी उनका कितना इमेजिनेशन, लॉजिकल इमेजिनेशन कितना परफेक्ट था, तो कितना डिटेल उन्होंने लिख के रखा है। हैनेमन ने क्रॉनिक डिजीज में, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल लिख के रखी है। उन्होंने हमें हर चीज की स्पून फीडिंग की है, जबकि उस वक्त प्रूफ देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका जो लॉजिकल माइंड था बहुत ही एक्सीलेंट था। हर चीज को उन्होंने इतना इमेजिन करके लिखा है। और उस दिन हमने देखा है कि सप्रेशन वो कैसा देखते थे, तो उसका पेशेंट का पोस्टमार्टम करते थे आफ्टर द डेथ, और तब समझ में आता था कि ये ऐसे हुआ, सप्रेशन इस तरह से हुआ। तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, और आज हमारे पास ये सब रेडीमेड है, खाली हमें पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। उन्होंने इतने सारे पेशेंट, लाखों हजारों लाखों पेशेंट देखे, और हमारे पास इतना सब कुछ मटेरियल रेडी होने के बाद भी हम होम्योपैथी को उतना जस्टिस नहीं दे पा रहे जितना उन्होंने उस ऑरा में किया, उस पीरियड में किया। यस, तो आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्पून फीडिंग बाय डॉक्टर हैनीमन। उन्होंने जो जो हिंट्स, उनके ये जो बुक्स है, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ऑर्गेनोन एंड जो उनका मैथमेटिका है, तो इसमें जो छोटे छोटे क्लूज, हिंट्स उन्होंने दी है, वो मैं डेली आपको एक हिंट्स उनकी बताते जाऊंगा, वो हिंट्स उनकी आपको डेली देते जाऊंगा। तो आज की हमारी हिंट है, स्पून फीडिंग है डॉक्टर हैनीमन की। So Dr. Hahnemann's hint, useful clinical guideline for homeopathic physician. तो आज के उनके हिंट है, स्पून फीडिंग बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, which is the best time for taking a dose. देखो, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हैनीमन ने इतने अच्छे तरह से लिख के रखा है कि डोज कब लेना चाहिए, हमने पेशेंट को कैसे गाइड करना चाहिए कि मेडिसिन का बेस्ट टाइम कौन सा होता है डोज लेने का, और डोज कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, और डोज लेने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार पेशेंट कभी भी मेडिसिन लेते बराबर कुछ भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की एक्शन होती नहीं है, और वो पेशेंट मेडिसिन के एक्शन ऑल्टर होने के लिए बहुत सी चीजें हमें समझने हैं और पेशेंट को बताने हैं। पेशेंट को अच्छी जब हम गाइडलाइन करेंगे, हम कितनी मेहनत करते हैं मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए, मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, और पेशेंट को देने के बाद अगर पेशेंट कोई गलती करता है, या फिर हम पेशेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो वहां पे थोड़ी सी भी गलती हमारे वेल सिलेक्टेड मेडिसिन को फेल कर देगी।
तो हैनेमन सर ने बहुत ही अच्छे हिंट्स, छोटे छोटे हिंट्स उन्होंने दिए हैं कि किस तरह से, और ये बहुत ही निग्लेक्टेड हिंट्स है, हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी ऑब्जर्व नहीं किया और अप्लाई भी नहीं किया। तो ये पेशेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे हिंट्स जो हमें बहुत ही पावरफुल बना देंगे। तो आपने शायद पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, द बेस्ट टाइम फॉर टेकिंग अ डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन seem to be not an hour before going to bed। देखो डॉक्टर हैनेमन ने लिख के रखा है कि द बेस्ट टाइम ऑफ टेकिंग अ मेडिसिन डोज होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सा है? तो सोने के पहले कभी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, नॉट एन आवर बिफोर गोइंग टू बेड। Rather on early in the morning while fasting should be taken dry and allowed to dissolve on the tongue। Yes, the best time of medicine, dose of medicine to take at the morning, क्योंकि स्टमक पूरा खाली होता है, फास्टिंग होता है, और अगर हम सुबह पेशेंट को बोलते हैं कि रात के बगैर आप सोते वक्त कभी मेडिसिन नहीं लेना, मेडिसिन हमेशा सुबह लेना, अर्ली इन द मॉर्निंग। और किस तरह से लेना चाहिए मेडिसिन? शुड बी टेकन ड्राई। बहुत से डॉक्टर डायरेक्टली मेडिसिन टंग पे डाल देते हैं पेशेंट की, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप। नो, हैनेमन सर ने कहा है कि उसको मेडिकेटेड करो ग्लोब्यूल्स में, और ग्लोब्यूल्स को भी ड्राई करके दो। अगर आप लैक्टोज पाउडर यूज कर रहे हैं तो लैक्टोज पाउडर को भी ड्राई करके दो। शुड बी ड्राई एंड अलाउड टू डिसॉल्व ऑन द टंग, क्योंकि वो टंग पे डिसॉल्व होना चाहिए। और बी moistened with 2 or 3 drops of water on a spoon and by itself। yes, या फिर 1 or 2 globules लेके स्पून में 2-3 ड्रॉप पानी के डाल के उसमें डिसॉल्व करके वो देना चाहिए। क्योंकि हमारे होम्योपैथी का ऐसा है कि मेडिसिन इन वाटर फॉर्म अगर देते हैं तो बहुत ही एक्सलेंटली वर्क करती है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैंने कोमा के पेशेंट्स में इसका रिजल्ट देखा है, डाइल्यूट करके। आप देखो एलएम पोटेंसी कितनी अच्छी तरह से वर्क करती है, बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि वो डायलेट करके देते हैं वाटर में, एंड वाटर इज द लिपिड सोल्यूबल, इसलिए वाटर में अगर देते हैं तो बहुत ही फास्ट उसकी एक्शन होती है। So without either case drinking anything after eat or eating anything within half an hour or a whole hour। yes, तो मेडिसिन लेने के पहले एंड लेने के बाद 1 आवर तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, नॉट अलाउड। So after taking the medicine the patient should keep, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है देखो, after taking the medicine the patient should keep perfectly quiet at least full hour। मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को बोलना चाहिए कि 1 घंटे तक शांत रहना, बट विदाउट गोइंग टू स्लीप, लेकिन सोना नहीं। स्लीप वाई हैनेमन ने कहा है कि मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को सोने नहीं देना, या फिर सोने के पहले 1-2 घंटा पहले मेडिसिन लेना चाहिए। तो व्हाई? बिकॉज स्लीप डिलेज द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन ऑफ द मेडिसिन। वो मेडिसिन को एक्शन ही नहीं होने देती, क्योंकि ऑल पार्ट ऑफ बॉडी गोज इनटू रिलैक्स कंडीशन। ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, नर्व फंक्शन बिकम स्लो,
That's why the action of medicine not started. So delays the beginning of the action of the medicine. He must avoid during this hour, yes, as indeed throughout the treatment, all disagreeable excitement nor should be strain his mind immediately after taking the dose. Again क्या कहा है कि मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को किसी बात का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए. इट आल्सो अफेक्ट द एक्शन ऑफ द मेडिसिन. इसीलिए साइलेंटली मेडिसिन डोज लेने के बाद हैनेमन ने कहा है कि पेशेंट ने एटलीस्ट 1 आवर तक साइलेंटली बैठना चाहिए. नो थॉट्स, नो एनी इमोशनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस और एंजाइटी. So this is the hint, today's hint. Yes. तो ऐसे छोटे छोटे हिंट्स मैं आपको डेली देते जाऊंगा और ये बहुत ही यूजफुल हिंट्स है और इसे हमें फॉलो करना ही चाहिए क्योंकि ये हैनेमन ने लिखा है और हैनेमन की राइटिंग में है तो हमें ये यूज करना ही चाहिए. तो आप भी आपके पेशेंट को जब बोलते हैं मेडिसिन के बारे में, डोज के बारे में, तो ये हिंट, ये इंफॉर्मेशन, ये इंस्ट्रक्शन जरूर देना. यस. सो दिस इज टुडेज स्पून फीडिंग. नाउ मैं आपको अनम्यूट करता हूं. तो आज आपको क्या समझ में आया? कौन बोलेगा? यस डॉक्टर कंसे. हेलो. बोलिए. हाँ सर. आज जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन में सर ने ऐसा बताया है कि वन शुड अंडरस्टैंड द, सब अपन को नॉलेज होना चाहिए कि अबाउट द ह्यूमन साइंसेस टू एम्ब्रियोलॉजी, अंडरस्टैंड, बायोकेमिस्ट्री. यस. टू अंडरस्टैंड how the suppression occurs or to understand how the direction of the cures occurs. इसके बारे में अपन को इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सेकेंड थिंग, जो ऑइंटमेंट की वजह से जो सेपरेशंस होता है तो Yes. हाउ इट वर्क्स, हाँ, तो हाउ इट ट्रांसफर्स टू द इम्पोर्टेंट और डीपर लेयर्स, Yes. दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड. सेकेंड एंड वन मोर थिंग इज, जो अपना बॉडी का पोटेंशियल जो रहता है, इट्स अ एनर्जी बेसिकली. So to understand that energy, one should understand how the systems are working and कहाँ से more important organ, less important organ कहाँ पे हैं, कैसे energy potentials travel होता है, action कैसी होते हैं. So this we should understand to know the whether we are treating or going in the right direction or it is suppression or as per like last chapter में भी ऐसा नहीं, theory of one should understand कि ये separation है कि we are going on right direction. Yes. Because most of the times हम लोग clinic में practice में यही देखते हैं कि we treat the patient but next time when he comes we don't know whether he is getting well और ये कुछ Yes. इसको temporary relief है or whether it is got better or not. Yes. ये बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं that are still we face in the practice. Yes. Yeah. Yes. क्योंकि समझ में नहीं आता है कि राइट डायरेक्शन से जा रहे हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन जा रहे हैं. लेकिन जब हमें ये इन सब्जेक्ट का, इन जो ह्यूमन साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट है, मॉडर्न साइंस के सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है. एम्ब्रियोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है. एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स तो तब काम में आएगा जब आप जेनेटिक लेवल के डिजीजेस
ट्रीट करेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सप्रेशन अच्छी तरह से समझना है, क्योर प्रोसेस अच्छी तरह से समझना है, तो एम्ब्रियोलॉजी का बुक लाइए और उसे पढ़िए। यस यस। और यस, would like to share? जिसको भी बोलना है अपना डिजिटल हैंड राइज कीजिए। डॉक्टर कन से आपको और बोलना है? यस डॉक्टर मस्के बोलिए। यस सर, हाँ ठीक है। डॉक्टर मस्के आपको अनम्यूट किया है मैंने। यस बोलिए। हेलो सर, हाँ मैं भी बोलिए, अनम्यूट, अब तक बोलूँ फिर? बोलिए ना सर, बोलिए। हाँ सर, अभी हम लोग अभी रूटीन प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, लाइक यू नो सम फीवर पेशेंट्स है या तो फिर कोई भी एक्यूट केसेस आते हैं, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग मतलब व्हेन टू प्रिस्क्राइब, व्हेन नॉट टू प्रिस्क्राइब, और वी जस्ट टेम्पटेड टू गो ऑन सिम्टम्स। भले पेशेंट कम्स विद अ कोल्ड है और एनी प्रॉब्लम्स, एनी एक्यूट प्रॉब्लम, हेडेक है, whatever it comes, we just tend to get prescribed on the what are the present medicines, और उसके बाद भी पेशेंट को कभी रिलीफ होता है, कभी नहीं होता है, यू नो, द पेशेंट कम्स। तो ये सब जो है कि व्हेन टू प्रिस्क्राइब एंड व्हेन नॉट टू प्रिस्क्राइब इज वन अदर सेगमेंट। ये बहुत यस confusion होता है बहुत। यस सर। तो ये जो व्हेन टू प्रिस्क्राइब एंड व्हेन नॉट टू प्रिस्क्राइब, ये हमें आगे आने वाला है, जब मैं बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है ये सब, क्योंकि आगे के चैप्टर में वो आने वाला है। यस हेलो। यस। हाँ सर। हाँ अरविंद बोलो। सर मेरे पास एक पेशेंट आया था 1 साल के पहले, वो मेरे पास पाइल्स के लिए आया था। अभी उनका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो गया और उस टीचर्स थे, वो टीचर्स उन पे पस हुआ था, तो उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन लिए। अभी वो क्लियर हो गई थी। आज वो मेरे पास आए, मैंने याकूट चार्ट के हिसाब से नक्सोमी का दिया 12, और अभी शाम को 5 बजे मुझे फोन आया कि 4 बजे मुझे फोन आया कि उसके स्टिचेस पक गए करके, पस निकल रहा है करके। क्या हुआ, क्या इन्हें सप्रेशन हुआ या बराबर है? बस आ रहा है। हाँ सर। दैट मीन्स बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। बैक्टीरिया लो हो रहे हैं। ग्रो हो रहे हैं, बढ़ हाँ, रहे हैं। बैक्टीरिया ग्रो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन लेकिन उसके पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था इन्हें? ये पस फॉर्मेशन होने के पहले क्या हुआ था वो देखो। पस फॉर्मेशन क्यों हुआ, आफ्टर मेडिसिन हुआ या फिर कोई अदर पॉजिटिव फैक्टर है वहां पे, वो फाइंड आउट करो। मैंने 12 बजे मेडिसिन दिया सर। आज अमावस्या है। आज की अमावस्या नहीं है। आज शाम से है ना सर? नो नो, पूर्णिमा है ना सर? पूर्णिमा कल से शुरू होगी। अच्छा। और मेडिसिन देने के तुरंत बाद अगर पस फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो सपरेशन नहीं हो सकता है। थोड़ा वेट एंड वॉच करो, उसके बाद मेडिसिन चेंज करना या फिर देखना कि राइट मेडिसिन है कि रॉन्ग मेडिसिन है। 12 बजे उनको फीवर भी था। तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से पस सेल्स हुआ है, पस फॉर्मेशन हुआ है ना। आफ्टर मेडिसिन इतना तुरंत तो नहीं होगा। ओके सर। और हुआ भी है तो कितना है, अगर बहुत मतलब बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा है पस, देन इट इज बैड साइड। थोड़ा ओके सर। बहुत पस सेल्स इट इज ओके,
क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में वो होता है, इट इज ओके। वेट एंड वॉच। और वेट एंड वॉच, और उसके साथ पेशेंट को डलनेस, क्योंकि पस फॉर्मेशन हुआ मतलब सबसे पहले पेशेंट को डलनेस आएगा, वीकनेस आएगा, वो नहीं है तो वेट एंड वॉच। ओके सर। यस यस राउत। एक्सक्यूज मी सर, यस सपोज अपन ने हिमोरेजिक सिस्ट के लिए वगैरह दवाई वगैरह दी, और उनको थोड़ा सा ड्रीम्स में वगैरह सुधार है, वीकनेस भी कम है, लेकिन आफ्टर 15 डेज फीवर आ गया, लेकिन अपन ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको टाइफाइड निकले वहां पे पढ़ने का, तो वो राइट डायरेक्शन है या रॉन्ग डायरेक्शन है? पहले क्या था? हिमोरेजिक सिस्ट। हिमोरेजिक सिस्ट कहाँ? हाँ, लेफ्ट साइड में, ओवरीज। ओवरीज के लेफ्ट साइड में हिमोरेजिक सिस्ट था, और हम्म। उसके बाद टाइफाइड हुआ, राइट? आफ्टर 15 डेज। आफ्टर 15 डेज, तो सबसे पहले आप वेट एंड वॉच करो, राइट? लेकिन टाइफाइड, सुनिए ना, सुनिए, पहले वेट एंड वॉच करना है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा, पहले सबके लिए बता रहा ना, तो पहले वेट एंड वॉच करना है। अगर वहां पे पेशेंट के थर्मल्स चेंज हो जाते हैं, पेशेंट को डलनेस, वीकनेस आ जाता है, जनरल पैरामीटर्स बिकम टोटली डिस्टर्ब, है ना, पेशेंट फील्स लैक ऑफ स्टेमिना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, डलनेस, लैक ऑफ appetite, sleep disturb, then you can think about the acute remedy। और acute दे के आप जब पेशेंट अच्छा हो जाएगा एक्यूट में से, तब आपको देखना है कि जो एक्यूट रेमेडी आपने दी है जिससे पेशेंट बाहर आया है, फिर आपको उसके ही रेमेडी के रिलेशनशिप में जाके आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फाइंड आउट करना है। क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज टाइफॉइड इन्फेक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, राइट? तो बैक्टीरिया को एंट्री दिया बॉडी ने, हो सकता है कि बैक्टीरिया ऑलरेडी वहां प्रेजेंट इंटेस्टाइन में, लेकिन ये रॉन्ग मेडिसिन होने की वजह से तुरंत उनको चांस मिल गया वर्क के लिए। ओके सर। यस, तो आपको सबसे पहले वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद फाइंड आउट करना है कि क्या हो रहा है। ओके सर। यस, देन यू कैन सिलेक्ट द एक्यूट रेमेडी, एंड आफ्टरवर्ड एक्यूट रेमेडी के ही रिलेशनशिप में जाके आपको फिर क्रॉनिक रेमेडीज ढूंढना है। अगेन यू कैन रिकंसिडर द केस। यस, यस, अगेन एनी क्वेरी, क्वेश्चंस? Yes, Disha. बोलो दिशा, बोलो. सर एक पेशंट आहे माझ्याकडे, अमेनोरिया, हेअरफॉल आणि वेट गेन ह्या कंप्लेंट साठी आलं होतं. तर मग मी TSH वगैरे केलं, तर TSH 15 निघालं, आणि फर्स्ट व्हिजिट मध्ये मी ऑलरेडी डोस दिला होता पेशंटला, आणि सेकंड व्हिजिट मध्ये रिपोर्ट्स आले त्याचे. पण इन बिटवीन त्या महिन्यामध्ये पेशंटचं वेट लॉस पण झाला 5 kg, हेअरफॉल पण बऱ्यापैकी कमी झाला, डलनेस पण गेला, जी वर्क डिझायर नव्हती, इरिटेबिलिटी गेली, स्लीपी फील होत होतं खूप, ते पण गेलं, पण मेन्सेस नाही स्टार्ट झालं. तर मग आता मी डोस चेंज करायला पाहिजे, रिपीट का काय? क्या स्टार्ट हुआ? मेन्सेस नाही स्टार्ट झाल्या, पण अच्छा. जे 2-3 महिन्यापासून अमेनोरिया होता ना, ते नाही Okay, झालं, okay. मेन्सेस Okay. नाही आले आफ्टर डोस, ओके, पण बाकी But- इम्प्रूव्हमेंट आहे. यस, बट वहां पे न्यूट्रिशनल ग्रेडियंट स्टार्ट हो गया, स्टिमुलेशन, राइट? वो न्यूट्रिएंट ग्रेडियंट गेट स्टिमुलेटेड, नाउ गिव सम टाइम, क्योंकि जो मेंसेस है इट आल्सो डिपेंड ऑन द हार्मोनल बैलेंस, और वहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म भी है, राइट? तो थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस होने दो, वेट एंड वॉच, एंड इट विल क्योर। ओके सर, यस, थँक्यू.
Okay, now we will stop here. And thank you very much. Thank you, all of you. Good night and love you all. Thank you.